Ladies and gentlemen. अगर आपको लगता है कि एक्टिंग सिर्फ डायलॉग बोलना और एक्सप्रेशन देना है तो ये वीडियो आपकी गलतफहमी को पूरी तरह तोड़ देगा। आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेता की जिसने फिल्मों की संख्या से नहीं बल्कि अपने किरदारों की गहराई से इतिहास लिखा। To the difficult task of honoring the finest among equals. 3 ऑस्कर, कोई सोशल मीडिया नहीं और एक्टिंग से अचानक संन्यास। ये कहानी है Mr. Daniel? डैनियल डे लुइस की। Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. So grateful to the Academy for this beautiful honor. 29 अप्रैल 1957 लंदन में डैनियल डे लुइस का जन्म हुआ, जहां कला रोजमर्रा की जिंदगी थी। उनके पिता थे सेसिल डे लुइस, ब्रिटेन के पोएट और लिटरेचर, और उनकी मां थी अभिनेत्री जिल बेल्किन। यानी शब्द और अभिनय दोनों उनकी विरासत में थे। Why do you stay in character? Maybe it's pure paganism. उन्होंने पढ़ाई की ब्लेडर स्कूल से और फिर ब्रिस्टॉल ओल्ड वाइस थिएटर स्कूल से उन्हें थिएटर की ट्रेनिंग ली। यही से शुरुआत हुई एक ऐसे अभिनेता की तैयारी की जो आगे चलकर नॉर्मल एक्टिंग को छोटा साबित करने वाला था। डैनियल ने करियर की शुरुआत की थी रॉयल शेक्सपियर कंपनी से। शेक्सपियर के नाटकों ने उनकी एक्टिंग को अनुशासन और गहराई दी। फिल्मों में उनकी पहली झलक मिली द गांधी और द बेंटी से। Good morning. Get off the pavement, you bloody coon. Yeah. Get off. Careful. Alan, what's he doing? Nothing. Must I suffer this before the You will suffer my correction whenever you're at fault, sir. What fault? Don't demurize, man! Oh, for that I apologize. Very well. But I protest. You protest, do you? I am master of the band. And I, sir, am commander by law! छोटे रोल थे लेकिन मौजूदगी नोटिस हो चुकी थी। 1989 में आई My Left Foot. A story of remarkable ingenuity becomes a triumph of the human spirit. My Left Foot. डैनियल ने निभाया आयरिश कलाकार क्रिस्टी ब्राउन का किरदार, जो सेरेब्रल पैल्सी से पीड़ित थे। I've chosen, and also in your style. Are you still at the experimental stage? Yes. So you still regard yourself as a pupil of art? Yes. Have you a teacher at the moment? I have. उन्होंने सिर्फ एक्ट नहीं किया बल्कि महीनों तक व्हीलचेयर में रहकर वैसे ही जीवन जिया। परिणाम पहला ऑस्कर। Daniel Day-Lewis in My Left Foot. You've just provided me with the makings of one hell of a weekend in Dublin. इसके बाद आई द लास्ट ऑफ मैकिन्स, इन द नेम ऑफ द फादर, क्रूबल। लेकिन असली तूफान आया 2007 में, देयर विल बी ब्लड। Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. I'm a family man. और डैनियल ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। The possession of the scene and the words and the spirit passed through you. I'll never forget laying there in the blood and hearing Daniel say the last line of the film. ये किरदार सिर्फ यादगार नहीं था, ये डरावना, असहज और अविस्मरणीय था। Superstition would help you, Eli. I am the third revelation. I am who the Lord has chosen. Because I'm smarter than you. I'm older. I'm your old friend, Daniel. I'm not a false prophet. Help me, You sniveling boy. I am the third revelation. The fate of human dignity in our hands. Blood's been spilled to afford us this moment. Now. अब्राहम लिंकन की भूमिका में डैनियल इतने वास्तविक लगे कि लोग उन्हें अभिनय करता हुआ देख ही नहीं पाए। And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. और बना तीसरा ऑस्कर और इतिहास बन चुका था। Daniel Day-Lewis is the first actor to win 3 Oscars in the lead actor category. डैनियल डे लुइस मेथड एक्टिंग को एक्सट्रीम लेवल तक ले गए। किरदार के लिए नई भाषाएं सीखना, नए पेशे अपनाना और ऑफ स्क्रीन भी उसी किरदार में रहना। You don't go to work with Daniel Day-Lewis. You go to work with whoever his character is. That's who you see when you get to work in the morning, and that's who leaves at night.
कई लोग इसे पागलपन कहते हैं, लेकिन यही पागलपन उन्हें महान बनाता है। मार्टिन सोरेसी, स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे निर्देशक उनकी इस समर्पण के लिए खुलेआम तारीफ करते हैं। Daniel Day is different. Daniel Day-Lewis, he's great to be with. I mean, and also this whole business of he's the character. It's easier. He doesn't come out of character. You could just do what they, walk over and Bill the Butcher. And as it turns out, the answer was right in front of me all along. Daniel Day-Lewis. 2017 में फैंटम थ्रेड के बाद डैनियल ने अपने अभिनय से संन्यास ले लिया। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई विदाई भाषण नहीं, बस चले गए। Whatever you do, do it carefully. सालों तक चुप्पी रहे, फिर 2025 में खबर आई कि वे फिल्म एनोमॉन से वापसी करेंगे, जिन्हें डायरेक्ट कर रहे थे उनके बेटे रोनेन डे लुइस, वो भी 7 साल बाद। डैनियल डे लुइस हमें ये सिखाते हैं कि सिनेमा में महान बनने के लिए हर साल दिखना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खुद को पूरी तरह झोंक देना ही काफ़ी है। ये सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक स्टैंडर्ड है। What do you want from me, brother? What do you want? अगर आपको लगता है कि डैनियल डे लुइस वाकई में ग्रेटेस्ट एक्टर ऑफ ऑल टाइम है, तो ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं कि उनका आपका पसंदीदा किरदार कौन सा था, और ऐसे ही अभिनेता को समझने के लिए हमारा ये वाला वीडियो ज़रूर चेकआउट करें। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया तो सब्सक्राइब से ज़रूर नवाजें। I'm finished.